connect and contact me here. How today? Mama say hi. So firstly. In that group, they were asked to solve exactly the same puzzle, except they were told. But actually, the story becomes even more interesting. In 69, there was another experiment, but back then in the 70s, we didn't have all the electronic world, and therefore researchers, they didn't know about all the other experiments. It was published again in 89 in Weisberg. The second problem that the Mongolian general has was that the Indian army was 5 times larger. So just imagine the battlefield. Here are the Mongolian army with the light riders, 5 times smaller army, and against them there is an Indian army, and they have this war elephant. The strategy was the following. The war elephants, they march, crushing everything, and then the light riders and the infantry come to finish the work. The Mongolian army was basically expected defeat. Now, of course, this is a ridiculous solution because there is no air force there. But let's assume that there was an air force. Calling the air force is something that any general could find. No one will miss such a solution. So, he could retreat. I'm not sure that this is an option for a Mongolian army, but let's assume that there is an option to retreat. Do you imagine that any general would miss this opportunity to retreat? To abort the mission? Would you? Probably not. So if we think outside the box, there are 2 kinds of solution. To set fire on the camels. And then the camels, he set them to run towards the elephants. The elephants saw the flaming camels running towards them as a firewall. They never saw such a thing. Animals are afraid of fire. Therefore, the elephants panically turned around and ran towards the Indian army, crushing in this panic the entire army. Then, after the elephants, you can imagine the Mongolian soldiers, the riders, coming to finish this work. Like calling the Air Force. The other type of solutions is regular solutions. Sometimes they are good solutions, traditional solutions, routine solutions, but they are not creative. मेहमीस और क्या हो रहा है? बैंकॉक में तो बारिश हो रहा है और पता नहीं क्या क्या। मेरी बहन को एस्ट्राजेनेका का दूसरा डोज लगाया। मेरा भी एक भी डोज नहीं लगा। सोच रहा हूँ बोंडरा परचेज करने के लिए। हाँ, 3,300 थाई बाट में मिल रहा है 2 डोज मोडेना का। यहाँ पे वैक्सीन अच्छा ख़रीदना पड़ रहा है, वरना चूतियों सिनोवैक ले आना पड़ेगा। हाई में व्लॉग करना तो एकदम फटफट आता है, लेकिन हिंदी में व्लॉग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। कभी भी ट्राई करते हैं आज हिंदी में व्लॉग करना। तो आज कल का व्लॉग देखा जाएगा हिंदी में रिकमेंड करूँगा कि 4K में व्लॉग देखो, मज़ा आएगा। आईफोन 4K में शूट करो तो 4K में व्लॉग कर दो। 4K 30 4K 60 फ्रेम रेट, यू कैन सी द डिफरेंस। तो इंडिया में क्या है सब भाई लोग, कोविड का सिचुएशन पता है कि पहले कितना था, कितना तो अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। 10,000 से ज़्यादा ही केसेस चल रहे हैं तभी भी, लेकिन देखते हैं कब तक क्या होता है। होपफुली इस साल के एंड तक सब ठीक हो जाए। अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो किस लिए फेस वॉश करने के लिए और ब्रश करने के लिए, तो फेस वॉश और ब्रश करके सोते हैं। ज़रूरी है ब्रश करना और फेस वॉश के लिए दवाई से ये सब मुँह पे आते हैं लगते हैं तो स्किन को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऐसा बताता ही होगा। मुँह देख सकते हैं थोड़ा सा पाउडर लगा लिया तो सोने चलते हैं। घुटना है हमारी मम्मी से जो रखने तो हो रहा है, देख सकते हैं आपको। ये हमारे बिस्तर में सोते हैं। अच्छा भाई लोग, तो वो तो मतलब कर चुका था, बस तो यूट्यूब देख रहा था तो दिखाता हूँ आज क्या क्या करता हूँ। हम नॉनवेज के सबसे फेवरेट एनिमल्स कौन सा है?
चिकन प्याज एयर पोल्यूशन की वजह से इतनी बीमारियां आती, 3 महीने जो है चिकनगुनिया ले जाता है, 3 महीने डेंगू ले जाता है, 3 महीने मलेरिया ले जाता है, बाकी के जो 3 महीने बचे होते हैं उसमें इबोला वायरस वीजा लगवा के आ जाता है अफ्रीका से, कि बेंच में भी मारूंगा तो चल। इबोला को तो वीज़ा दे दिया, ये कोरोना को किसने वीज़ा दिया बे? चलो गाइस तो आज पिज़्ज़ा लाते हैं, वही पिज़्ज़ा का मेरे पर रिव्यू किया था पिछले वीडियो में, आके देख सकता है वही वाला मोटर व्लॉगिंग। पहुंच गए हैं दोस्तों, ये है दुकान, तो विवाह से आता है आके बैठते हैं। तो दुकान ऐसा है दुकान। तो यहाँ पे थाई गवर्नमेंट ने पॉलिसी रखी है कि कुछ भी खरीदोगे और दुकान वाले के पास गवर्नमेंट का वो पॉलिसी होगा तो 50-50 आप दोगे, 50 गवर्नमेंट देगा। तो मेरा पिज़्ज़ा जैसे 90 बात का हुआ तो मैंने सिर्फ 45 बात उनको दिया, तो अच्छा है पॉलिसी। इंडिया में अगर ऐसा होता तो वहाँ पे भी अच्छा होता। देख हो रहा है यहाँ पे दूर दूर तक सामान देते हैं सब लोग, खाने पीने वाला, वहाँ तक खाना मिलता है, पानी मिलता है। हमारा घर उस तरफ जाता है। हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा मिल चुका है, अब घर चलते हैं तो लेके। खा चुके हैं तो सोचते हैं बाकी से ATM से पैसा निकालते हैं। ये क्या काशी में हम लोग दोस्त, मतलब बारिश जैसा हो रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पर। मौसम जैसा ये तो पता नहीं, लेकर जा रही होगा। मैं प्राइवेट बाइक बहुत हल्ला भी करती है, तो चलिए एंड पेप्सी विथ कोक विथ पेप्सी विथ वाटर। पेट नहीं आएगा, दुखेगा।